इनफिडेलिटी, इसको एक्चुअल डेफिनेशन में कैसे बिठाया जा सकता है? इतना भी बड़ा जुर्म एक रिश्ते में कोई करता है, पनिशमेंट इज नॉट जस्टिफाइड। दो लोग मिलकर रिश्ते की एक हद तय करते हैं, दो लोग मिलकर रिश्ते की आजादी का दायरा तय करते हैं। सेक्स किया नहीं किया ये बहुत आगे की बात है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन हियर बिकम्स अ बिग लूप होल। सवाल ये नहीं है कि ट्रस्ट वापस आएगा या नहीं आएगा। हर इमोशनल ट्रस्ट आपने खुद के दम पे दाव पे लगा दिया। वो बार बार आपसे सवाल पूछेंगी, वो बार बार उस पेन को फील करेंगी। यहाँ पे आपको लेबल कल्प्रिट का ही मिलेगा। पनिश आप उस वक्त 3 लोगों को कर रहे हो, एक खुद को, एक उस रिश्ते को, और दूसरा Hi, I'm Dr. Sabia, India's leading sex and relationship coach, and you are watching Sex Coaching with Dr. Sabia, making love simple. On this channel, I answer real questions sent by people like you, your stories, your struggle, your truth, and don't worry, your privacy is my top priority. What if you never actually had an affair, but the chats, transactions, and spa visits scream otherwise? Can a relationship survive that kind of betrayal, even if physical sex didn't happen? Let's talk about addiction, broken trust, and the hard road to rebuilding love. So now let's dive in today's mail. A man wrote, I live alone away from my family, another city since 3 years. I have gotten addicted to spa and massages by females since a year. I have also taken initial steps to talk, chat with escort services to get into sexual intercourse. However, I never had it either in spa, rooms, homes or hotels. And through all this, my primary objective was to receive photos from all the service providers to arouse my sexual feelings. Recently, we, that is family, had planned to shift and be together, and in the wake of this, I stepped in spa, considering it as last time before my family comes in couple of weeks. And I took a body-to-body massage from female without intercourse. And I have a loving wife, a charming son. My wife dedicatedly loved me and trusted me. My son loves me a lot. I love them to the fullest, and I cannot leave them or imagine life without them. However, recently my wife caught all my acts, and our beautiful married life is suffering a lot. My wife has all my chat records, transaction records, and I do not wish to take this away from her. With all these chat records, it becomes very obvious that I had sex multiple times. However, I have never had it, and I do not have proofs to make her believe me. I have broken her trust, and she cannot trust me again. I understand that I cannot undo what I have done to her heart, but I wish to put all my life efforts to do as much as I can. Dr. Sabia, can you help me in this, please? Now let's revisit your mail and understand the pattern. Now, in first thing first, in all this you are not alone. बहुत लोग especially जो family से दूर रहते हैं, एक emotional और sexual loneliness face करते हैं. Spa visits हो, erotic chats हो, male female any gender attention, ये सब धीरे धीरे एक पैटर्न बन जाता है. और जब आप बोलते हो ना कि मैंने कभी सेक्स नहीं किया, मैं मानती हूँ I trust on you, क्योंकि शायद आपने फिजिकल लाइन कभी क्रॉस नहीं की है. लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ सेक्स करना नहीं होता है, राइट? व्हाट आर द रियल चैलेंजेस हियर? लेट्स डीप डाइव इनटू इट. आपने मेल में लिखा है कि माई वाइफ डेडिकेटेडली लव्ड मी एंड शी ट्रस्टेड मी, सो यू आर अवेयर ऑफ इट वेरी वेल. अब रिलेशनशिप कोई भी हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, दो लोग मिलकर रिश्ते की एक हद तय करते हैं, दो लोग मिलकर रिश्ते की आजादी का दायरा तय करते हैं. एंड ये स्पेस एक बार तय होती है, देन देयर इज नो गोइंग बैक. एज आई ऑलवेज से, अट्रैक्शन होना किसी को देखकर स्वाभाविक है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस. कुछ देखा, अच्छा लगा, अराउजल हुआ, इसको हम हमारी भाषा में TFAR मॉडल कहते हैं. थॉट्स आए, फीलिंग्स आए, A is action and R is result. अब एक कमिटेड रिलेशनशिप में भी थॉट्स एंड फीलिंग्स आ सकते हैं, बट एक्शन, व्हेन इट इज अबाउट एक्शन, ये वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता है. किसी के साथ चैट, किसी को मिलना, किसी को किस नीयत से मिलना, मिलकर बताना या नहीं बताना, ऑल दिस इज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन. एंड एज आई से, R is the result, the consequences of short-term gain and long-term loss. In your case, what was the space you had with your wife? What was the understanding you had with your wife? And what was the non-negotiable and what was negotiable? ये यहाँ पे बहुत अहम है. Now your mail that clearly indicates कि spa visit या chat was not consensual, and that's where the trust broke.
Now before going ahead, हम थोड़ा ना इनफिडिलिटी इसको एक्चुअल डेफिनेशन में कैसे बिठाया जा सकता है इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं. Now you are mentioning that actual sex नहीं हुआ, that means penis going into vagina नहीं हुआ, intercourse नहीं हुआ. Indeed, I do believe you when you are mentioning it in the male. But looks like your definition or your belief about infidelity is only if there is actual intercourse, and that is not the truth for your wife. So sure, she will be having a question in her heart. If you had some physical needs, what stopped you from asking it to her? What made you not communicate to her? Lack of communication here becomes a big loophole. Now going ahead, हमको ये भी समझना होगा कि yes, professional and occupational hazard where a couple stays in a long distance relationship can't be ruled out here because you had biological needs, and to fulfill at least some superficial biological needs, her emotional trust आपने खुद के दम पे दाव पे लगा दिया. आपके जिस्म का जब एक पार्टनर हकदार है एक मोनोगामस रिलेशनशिप में, तो यकीन मानो इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट उसके बंदे को किसी ने टच किया, सेक्स किया नहीं किया, ये बहुत आगे की बात है. यू आर हर मिल्कियत, आप उनकी एक टेरिटरी हो और उसके किंगडम में आया और कोई गया और उसको पता भी नहीं. इट विल ऑलवेज हर्ट हर. नाउ जो आपके मेल को पढ़ के समझ आता है, द मेजर कंसर्न इज ऑल अबाउट रीबिल्डिंग ट्रस्ट. तो यकीन मानो सवाल ये नहीं है कि ट्रस्ट वापस आएगा या नहीं आएगा. सवाल ये है, आर यू रेडी टू पुट इन द इयर्स ऑफ एफर्ट्स दैट ट्रस्ट रिपेयर विल टेक. बिकॉज जो रिस्क आपने आपके बायोलॉजिकल नीड्स के लिए लिया, उतना ही रिस्क अब आपके इमोशनल हीलिंग के लिए लेना पड़ेगा. एंड हीलिंग इट्स नॉट लीनियर. वो बार बार आपसे सवाल पूछेंगी, वो बार बार उस पेन को फील करेंगी. If you truly love her, this is your moment to stand your ground and say, yes, I understand. No excuses, but I'm here now, willing to do whatever it takes to win you back. बिकॉज यस यहाँ पे आपको लेबल कल्प्रिट का ही मिलेगा. दैट इज हाउ वी आर सोसाइटी डिफाइंस इट. हाउएवर आई स्ट्रांगली बिलीव कितना भी बड़ा जुर्म एक रिश्ते में कोई करता है, पनिशमेंट इज नॉट जस्टिफाइड. व्हाट वी नीड इज वंस अगेन ग्रेसफुल कन्वर्सेशन. क्योंकि इम्पॉर्टेंट यही होता है कि सजा देने से रिश्ता नॉर्मल नहीं होगा. हर्ट होना नेचुरल है, बुरा लगना नेचुरल है, भूल नहीं पाना नेचुरल है, यहाँ तक कि उस रिश्ते में से मूव ऑन करना भी नेचुरल है. बट आई स्ट्रांगली बिलीव एक ह्यूमन ने दूसरे को ह्यूमन जैसा ट्रीट करना बहुत जरूरी है. पनिशमेंट्स आर वेरी अनह्यूमन, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनफिडिलिटी और किसी भी सिनारियो में. बिकॉज आप भले विक्टिम हो, आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन पनिश आप उस वक्त 3 लोगों को कर रहे हो, एक खुद को, एक उस रिश्ते को और दूसरा सामने वाले को. So coming towards end, कोई भी मैरिज हो, as we all know, it's never a bed of roses. Happily ever after से ज़्यादा how you deal with a crisis in a relationship where yes, one is at fault and one is not is the real game changer. Please do seek some professional help as individual and as a couple too. क्योंकि कभी कभी ना एक अनबायस्ड स्पेस लगती है मुजरिम का गुनाह समझने, उसने वो क्यों किया ये समझने, और क्या होगा तो वो वापस से नहीं करेगा ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड सिमिलरली सेम टाइम विक्टिम की जो जद्दोजहद है वो भी हमको समझ के लेना पड़ेगा. क्या वो माफ़ कर पाएगा, क्या वो भूल जाएगा? सो यस, यू नीड हेल्प, सो सीक हेल्प. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब याद से करो. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक क्लिप्स एंड यूजफुल इंसाइट्स. अपने क्वेश्चंस मुझे आप ईमेल कर सकते हो at contact@drsabia.com. एंड इफ यू वांट टू बुक ए 1-on-1 सेशन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट दैट इज drsabia.com. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि हर नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे. लेट्स कीप मेकिंग लव सिंपल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.